Dear students, so far we have discussed about the digestive system in this chapter. We have talked about the whole alimentary canal, beginning from mouth to the last part, that is anus. The digestive system consists of different organs, each having some specific function, some specific activity. We have also discussed about the histology of the alimentary canal. कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उनमें लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो द आउटर मोस्ट लेयर दैट वी ऑब्जर्व इज नोन एज द लेयर सेरोसा. इनर टू सेरोसा वाज द मस्कुलरिस लेयर which was made up of smooth muscles. Inner to the layer of smooth muscles was the next layer called submucosa. And submucosa was the layer which also sometimes contained digestive glands in duodenum. Submucosa of duodenum has a specialized gland called Brunner's gland. Otherwise, submucosa will be having presence of large number of blood vessels, that is capillaries, as well as network of nerve cells will also be present in the submucosa. Innermost layer जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा लेयर कहते हैं. ये म्यूकोजा लेयर में कई सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. जैसे कि स्टमक है तो स्टमक में म्यूकोजा लेयर फॉर्म करता है गैस्ट्रिक रूगे, और इंटेस्टाइन में यही म्यूकोजा लेयर फॉर्म करता है विलाई, जिसमें छोटे और जो प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई. और माइक्रोविलाई जो होते हैं, दे गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द होल सेल. So in this way, different layers will be consisting of different things. That is, some will be muscle layers, some will be epithelial layer, some of them will have connective tissues and some will undergo modifications. Histology की बात करने के बाद, now we move on to the next very important topic of this chapter, which is the digestive glands. इस टॉपिक को कहा गया है digestive glands. तो जो हमारी digestive system काम करती है, उतना ही इम्पोर्टेंट काम कौन करता है, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. मतलब डाइजेशन के साथ एसोसिएटेड ऐसी 3 इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो देयर आर 3 मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो विच आर दीज 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? द फर्स्ट ग्लैंड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट is the salivary glands. The second important gland, which is the liver, that is the largest gland present in our body. And the third gland that is present is the pancreas. हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होगा उसमें फूड तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पास होते हैं, पर ये जो सराउंडिंग ग्लैंड्स होंगे, दे विल add their secretions to our digestive tract and thereby enhance the process of digestion. तो ही digestion का process properly complete हो सकता है. So first we talk about the salivary glands. Now when we talk about salivary glands, where are they present? The salivary glands are located outside your buccal cavity. Where are they located? Located outside the buccal cavity. And we are having 3 such pairs of salivary glands. So there will be 3 major salivary glands present. 3 types of salivary glands are present. हमारे पास ऐसी 3 तरह की salivary glands हैं. The first gland which is known as parotid gland. जो सबसे पहली ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड. तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अवर ईयर्स. सो वी विल मेंशन द लोकेशन इन फ्रंट ऑफ ईयर्स. दैट इज व्हाट द लोकेशन. मतलब हमारे जो ईयर्स हैं उसके आगे
यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है और उन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? पैरोटिड ग्लैंड्स. द पैरोटिड ग्लैंड्स ओपन एट द अपर मोलर टीथ. कहाँ पे ओपन होती है? इट ओपन्स इनटू द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड opens at upper molar teeth. It opens at the upper molar teeth and the duct is known as Stenson's duct. क्या कहा जाता है? ये वैसे तो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है they are associated with ducts. Ducts मतलब क्या? A small tubular passage that will allow the secretion to come into the buccal cavity. तो salivary glands तो यहाँ पे ears के पास located है parotid gland, और उसका secretion आ कहाँ पे रहा है? buccal cavity में. So how it is going to travel? It is going to travel in a small tubular passage, और इस छोटे से tubular passage को हम कहते हैं duct. तो ये जो डक्ट है दैट इज एसोसिएटेड विथ पैरोटिड ग्लैंड, उसे कहा जाता है स्टेनसन्स डक्ट. द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इज सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड. सब मैंडिब्यूलर भी कहा जाता है और सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है. ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर मैंडिबल्स एंड मैक्सिलर. जो जॉ बोन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसके दोनों नाम है. एंड अगर हम लोकेशन की बात करें, सो इट इज लोकेटेड एट एंगल ऑफ द जॉज. जो हमारे जॉज का एंगल बनता है उस एंगल पे लोकेटेड होते हैं, एंड दे विल बी ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ buccal cavity. Opens at floor of buccal cavity. मतलब buccal cavity के फ्लोर में ओपन होंगे कौन से ग्लैंड्स? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और यू कैन से सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. इनके साथ जो एसोसिएटेड डक्ट होती है उसे कहा जाता है वॉर्टन्स डक्ट. द डक्ट ऑफ this gland is Wharton's duct. Wharton's duct. It is after the researcher Wharton. Okay. तो यहाँ पे पहली ग्लैंड आती है पैरोटिड ग्लैंड, फिर आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड वेयर इज इट लोकेटेड? एट द एंगल ऑफ द जॉज, एंड इट ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. द थर्ड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इज, मतलब जो थर्ड टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, और उसे कहा जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड. सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब हमारी टंग. सो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द टंग. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टंग के बेस पे. And it opens also, it opens at floor of the buccal cavity, same like mandibular और maxillary gland. Actually ये जो होती है वो हमारे सबसे नीचे के जो आगे के इंसीजर्स होते हैं वहां पे ओपन होती है. इट ओपन्स एट द इंसीजर्स, लोअर जॉ के इंसीजर्स जो है वहां पे ओपन होने वाली ग्लैंड होती है द सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, पर उसको कॉमनली हम कह सकते हैं कि इट इज फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. सो यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बीनीथ द टंग एंड इट ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. इट्स डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस. उसके साथ एसोसिएटेड जो डक्ट है उसे क्या कहा जाता है? डक्ट ऑफ रिविनस. ये सिर्फ नीट के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, लाइक वॉर्टन्स याद रखना है, रिविनस याद रखना है, स्टेनसन्स. दैट इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है,
तो 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ली। तो सलाइवरी ग्लैंड्स विल बी मेकिंग अप अ सिक्रीशन which is called saliva. So all these glands collectively produce, or you can say collectively secrete the secretion, जिसे क्या कहा जाता है, सलाइवा। अब सलाइवा जो सिक्रीशन है उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जब हम डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। पर तभी के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सलाइवा में होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट जिसे कहा जाता है म्यूसिन। इसके अलावा सलाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज, और ये जो अमाइलेज एंजाइम होता है दैट इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। इसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनटू द माउथ और बकल कैविटी। सो इन दिस वे एंड सलाइवा हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉइस्चनिंग द फूड। जो फूड है वो ब्रेक तो टीथ की वजह से होता है, टीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बट सलाइवा के साथ जब मिक्स करता है तो इट एनेबल्स अस द टेस्ट ऑफ दैट फूड। वो जो फूड है उसका टेस्ट क्यों आता है? ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ग्लैंड दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकंड ग्लैंड दैट इज लीवर। So liver is the largest gland of our body, largest gland of the body, and it is 1.2 to 1.5 kg in its weight. The weight of the liver is quite more. 1.2 to 1.5 kg is the weight of the liver. Now if we say where is liver located, तो लीवर जो होता है वो हमारे डायफ्राम के नीचे, मतलब लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम है उसके नीचे प्रेजेंट क्या होता है? लीवर। तो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है स्टमक और राइट साइड पे होता है लीवर। सो वी मेंशन दैट इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, that is below the diaphragm. डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है, दैट इज अवर लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लीवर। लीवर का डाइजेशन में तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही, पर इसके अलावा भी लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी। सो वॉट एवर योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग इट, फॉर प्योरिफिकेशन इट विल गो इनटू द लीवर। और एक चीज लीवर में होती है जो है लीवर जो क्या करता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया। प्रोटीन्स में से एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड से यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, दैट यूरिया फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन लीवर। दो यूरिया रिमूवल के लिए तो किडनी से रिमूव होता है, पर उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लीवर का। अब लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल्स। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स। तो लीवर के अंदर सेवरल कॉर्ड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन कॉर्ड शेप स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? हेपेटिक लोब्यूल्स। ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है दे विल बी सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, और उसे कहा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। सो वी डिस्कस अबाउट द लीवर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर।